Hello students, Standard 10, Subject Social Science, Chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness, Session 4. Consumer Awareness, Jago Grahak Jago. Students, till now in the session 3, we have discussed about the different steps that can be taken by the government in order to control the price rise. Before that, we studied about what is price rise, the causes or the reasons for the price rise. Now, today, in this particular session, we will discuss about the basic terminologies and concepts related with the consumer awareness. Students, in a modern time, we buy and enjoy many goods and services in our daily routine life. From morning till night, during many activity of us, we use and consume various goods and services. So when we consume different goods and services, we are considered as a consumer. तो हम क्या कहलाएंगे? Consumer. In Hindi, it is called grahak, and that's why the program or the movement for the consumer awareness is titled with the slogan Jago Grahak Jago. Means in which sense you have to, Jago means you should be aware, you should be informed. When you go to the market to buy the goods and services, you must have a basic knowledge and understanding about the market situation, the variety of goods and services, the related price, other policies. So there is a less chance that the buyer will cheat you. Okay, so in that sense, you must be aware, and that's why the concept of consumer awareness is very much important in a present time for you and me as a consumer. So let's see. Nowadays, every person is a consumer in one way or other. Even though we are producer of particular goods, अगर हम कोई अपनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री भी है जहाँ पे कोई गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, देन टू वी आर कंज्यूमर. क्यों? क्योंकि घर आने के बाद हमारी जो दूसरी रूटीन लाइफ है उसमें हम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, एंड दैट्स वाई वी आर कंज्यूमर ऑल्सो. Many items of same features of different brands are available in the market. Yes, students, whenever you visit any mall or a supermarket, at that time you have variety of option to buy a particular product. Suppose you want to buy a biscuits, the different companies biscuits are available with cream, without cream, and with the different flavors. When you wanted to buy a shampoo, the shampoo with the different properties and the characteristics are displayed on the stalls. Okay, so in those cases, nowadays as a consumer we have a very good choices in the market to buy a different goods. Illiterate and unaware consumer do not have complete knowledge or information about the diversity and the alternative uses of goods. When as a consumer we are not aware about the market situation, we are not aware about the different goods and services offered in the market, when we are not informed about the variety of goods and their alternative uses in the market,
it is very much harmful for us. As there are several middlemen between producer and consumer, the consumer is exploited in any way. As a consumer, whatever goods we purchase, that we purchase from our nearby shops or a market. एक ग्राहक के रूप में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो गुड्स और सर्विस हम अपने नियर बाय शॉप्स, नियर बाय मार्केट्स या मॉल से परचेज करते हैं. वी डायरेक्टली डोंट गो टू फैक्ट्री टू बाय द गुड्स. अंडरस्टूड? सो the goods which we are consuming and which we are using, that is coming to us from the producer with the help of many middlemen. कि फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उनके पास से वो गुड्स एक होलसेलर परचेस करेगा इन अ बल्क, इन अ ह्यूज क्वांटिटी. Then that wholesaler will sell those goods in a little bit small quantity to different retailers, and from those retailers and retail shop owners we buy finally our goods and services. So consumer से के पास जो goods आते हैं जो प्रोड्यूसर ने सप्लाई किए हैं, so from producer till consumer when the goods reach there are 2-3 middlemen party who plays the role. और उसी के टाइम पे चांस है कि हमारे साथ चीटिंग हो. The system wherein the goods and services that a consumer buy in lieu of money are of good quality, proper weight, and at a reasonable price is known as consumer protection. As a consumer, students, you have a right to buy a goods of a good quality. You must get the proper weight of the product as defined on the packet or as you demanded. Third, that whatever price you are paying, the price should be reasonable. That should not be extra or a high price charge from you than the prevailing market rate. कि जब आप कोई चीज़ पैसे देकर खरीदते हो एज अ कंज्यूमर, ये आपका हक है कि आपको वो गुड अच्छे क्वालिटी के मिले, आपको वो गुड्स का प्रॉपर वेट और मेजरमेंट मिले, और आपसे उस प्रोडक्ट के जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं उतने ही आपसे चार्ज किए जाए. Such kind of security is considered as a consumer protection. So in exam you may get a question, students, for 1 mark, that what is consumer protection. So you have to write the last point with the top 3 line. So consumer protection is not just an agitation, but it is a movement of consumer awareness. So consumer protection is not just a minor concept. Consumer protection has given a birth to total movement of consumer awareness. And consumer awareness is a moment of consumer protection. और एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो consumer awareness का ये जो पूरा प्रोपेगेंडा या तो एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, उसका मेन रीज़न ही ये है कि कंज्यूमर्स को अवेयर करके उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में उन्हें इन्फॉर्म्ड किया जाए. ओके. Consumer protection is well organized program for the people of the society to make them mature consumer, with the help of which anti-consumer activity, exploitation and deception may be faced. You can say this is the objective of consumer protection. So why consumer protection program was launched? So in order to make the people of the society mature consumer, कि आपको एक मैच्योर कंज्यूमर बनाने के लिए. नाउ व्हाट इज मैच्योर कंज्यूमर, स्टूडेंट्स? एज अ कंज्यूमर, व्हेन यू एंटर इनटू द मार्केट टू बाय डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, एट दैट टाइम you must be aware about the different goods and services offered in the market, their prices, their pricing policies, and other features of the goods and services, so that the buyer will not be able to cheat you and to exploit you in a different or any way. कि एक मैच्योर कंज्यूमर का ये मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राहक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में खरीदने के लिए निकला है उसके बारे में उसके पास मार्केट का पूरा इंफॉर्मेशन है. ही इज हैविंग ऑल द अवेयरनेस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. और ऐसे इन्फॉर्म्ड, ऐसे अवेयर्ड कंज्यूमर को मार्केट में जो भी सेलर या ट्रेडर्स है
वो कोई भी एंटी कंज्यूमर एक्टिविटी लाइक एडल्ट गुड्स, फूड एडल्ट्रेशन और मिक्सचर ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स, लेस वेट, है ना, हाई प्राइजेस, ऐसे किसी भी तरह से वो आपको चीट नहीं कर पाए, इसलिए ये कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च हुआ। Ralph Nader started a movement in America to bring the consumer awareness. Important question for objective, that who started a movement to bring the consumer awareness? So Ralph Nader, where he started in America. Okay, then the concept spread into the entire world. Thus, he is called as a pioneer of the consumer movement, father of the consumer movement. Satisfaction of consumer is our motto. Consumer is the king of the market. आपने ऐसे स्टेट्समेंट कहीं कहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे. Such statements seem to be exaggeration and the deception in the present time. Deception means भ्रमित करने वाला, है ना, यानी हमें अच्छे अच्छा बोलकर हमें लूटा जाता हो, that way. The producer, entrepreneur or trader produces things as per their ability and convenience. Normally, in a present time, the consumer is considered as the king of the market. कि हम इस पूरे गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैरायटी ऑफ मार्केट से उसके हम किंग है. इन विच सेंस? नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में सेल होने के लिए आते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे प्रेफरेंस, हमारे टेस्ट, हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. अगर रियली में ऐसा होता हो देन यस, वी आर किंग ऑफ द मार्केट. बट कहने के लिए आज हम सिर्फ किंग ऑफ मार्केट है, अदरवाइज मार्केट में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उसे अफोर्ड कर पाए उस रेंज में बनते नहीं है. एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट द प्रोड्यूसर एंड द ट्रेडर प्रोड्यूसेस द गुड्स as per their requirement and their convenience. Later on, they try to attract the consumer through the antis advertisement in TV, radio, by publishing advertisement in the press continuously by medium like website, hoardings and the banners. So nowadays what the producer and the traders are doing, students, वो उनके कन्वीनियंस और ज़रूरत के हिसाब से गुड्स बनाते हैं, फिर उन गुड्स को हमें बेचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट, ये सब के थ्रू वो इतना सारा एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और हमारे माइंड पे हैमरिंग करते हैं कि हमें ये ऐसा फील होने लगता है कि ये गुड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. एंड दैट वे दे ट्राई टू सेल दोज अननेसेसरी गुड्स टू अस बाय द वे ऑफ एडॉप्टिंग द एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स. ठीक है, और इस तरह से हम भी उन एडवर्टाइजमेंट वगैरह में फंस कर उन एडवर्टाइजमेंट में बताई गई रॉन्ग प्रेजेंटेशन को सच मानकर उन गुड्स को खरीद लेते हैं और यूज करने लगते हैं. बिकॉज ऑफ इट द कंज्यूमर फाइंड इट डिफिकल्ट टू परचेज और चूज प्रॉपर कमोडिटी एंड इज गाइडेड टुवर्ड द फॉल्स वे एंड इज दस एक्सप्लॉइटेड. तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि जिसमें जो बातें बताई जाती है या एडवर्टाइजमेंट में जिस तरह से गुड्स को प्रेजेंट किया जाता है, रियली में उसको मानना और समझना कभी कभी बिलीवेबल नहीं लगता. टेक अ सिंपल एग्जांपल कि बर्तन धोने वाला विम बार 100 नींबू की शक्ति वाला, इवन इफ यू बाय 100 नींबू, है ना, विथ 1 रुपी, देन टू इट विल गो टू 100 रुपीज़. तो फिर वो 100 रुपीज़ का नींबू जो बनता चाहिए उसके जूस से बनने वाला सोप वो आपको 10 रुपीज़ में कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं. एकदम काले जले हुए बर्तन होते हैं उसको भी वैसे एक बार में ही साफ कर देता है. ठीक है, ABCD वैरायटी ऑफ क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है जिसको लगाने से आप 4 दिन में गोरे हो जाओगे, पर काला क्यों नहीं चलेगा? वाई देर इज अ नीड टू बिकम, है ना, फेयर अननेसेसरली by changing the tone of the natural skin. तो इस तरह से बहुत सी ऐसी रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है जिसके थ्रू वो आपको मिसगाइड करते हैं और आप कभी कभी उसमें फंसकर उन चीज़ों को खरीद लेते हैं
that is also kind of exploitation. Now the form of consumer exploitation, a question for 2 marks, कि मार्केट में कौन से ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आपके साथ चीटिंग हो सकती है. ओके, सो लेट्स सी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, दैट यू शुड नॉट ओनली कंसिडर फ्रॉम द, है ना, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क और 10 मार्क्स. दिस चैप्टर इज रिलेटेड विथ अवर रेगुलर लाइफ लेसन. ये रूटीन रियल लाइफ लेसन है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैक्सिमम कंसेप्ट्स. एंड अब आज से आप जब भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जाओ, सो यू मस्ट बिहेव रैशनली, यू मस्ट बिहेव लाइक अ अवेयर्ड कंज्यूमर. ओके, सो दैट यू शुड कीप इन अ माइंड. तो अभी हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रॉन्ग टैक्टिक्स और तरीके हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है. Consumer are exploited by the producer and the trader in a different way, which is given below. He is exploited by providing commodity of less weight than one printed on the packet. कि उस पे जो गुड्स वगैरह का जो वेट लिखा होगा वो लिखा होगा 500 ग्राम, अंदर से निकलेगा 480 ग्राम. By providing the slightly defective or a fake commodity goods, कि जो आपको पैकेट के ऊपर जैसा दिखाया गया या आपको टीवी में, न्यूज़ में, या सॉरी एडवर्टाइजमेंट में या प्रेजेंटेशन में जिस तरह से उस गुड्स को प्रेजेंट किया गया था, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का, उससे थोड़ा, है ना, मिलता जुलता बट कैरेक्टर वाइज पुअर गुड्स आपको दे दिया. ओवर प्राइसिंग, छपे हुए प्राइस से ज़्यादा लेना. बाय प्रोवाइडिंग द एडल्टरेटेड गुड्स विच आर डेंजरस और हार्मफुल फॉर द हेल्थ, कि आप जो गुड्स इस्तेमाल कर रहे हो उसमें एडल्ट्रेशन किया गया है, मतलब हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को मिक्स किया गया है इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज, है ना. कि जैसे कि टेक एग्जांपल कि आपका जो बॉर्नविटा वगैरह आता है उसमें जो ग्राउंडनट्स वगैरह के जो शेल्स होते हैं, है ना, मूंगफली का जो छिलका होता है उसे बेक करके उसको क्रश करके उसमें डाला गया होता है. टी और कॉफ़ी में टी, स्पेशली टी लीव्स जो आते हैं उसमें एनिमल के वेस्ट को ड्राई करके, है ना, ब्लेंड करके डाला जाता है. दीज आर द रॉन्ग एडल्ट्रेशन जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विस, जब आपको गुड्स वो बेचते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस किए जाते हैं, कभी भी बिगड़ेगा हम आपको नया बदल कर देंगे, वारंटी है, गारंटी है, अरे हम तुरंत आकर रिपेयर कर जाएंगे, बट एक बार बेचने के बाद कोई कंप्लेंट सुनता नहीं है. दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग कॉस्ट कंस्ट्रक्शन गुड्स सर्विसेज एज पर प्री डिटरमाइंड कंडीशन, कि गुड्स वगैरह एक बार आपको बेच दिए, फिर अगर वो बिगड़ते हैं, कोई उसमें दिक्कतें आती है, तो उन्होंने सेल करने के टाइम पे जो प्रोमिस किए थे सर्विसेज से रिलेटेड, ऐसा कोई सर्विस आपको नहीं दिया जा रहा. सो दिस वे यू कैन बी चीटेड और एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट. In providing electricity, banking, insurance, telephone or a medical facility, seller or trader shows the negligence and humiliate consumer by cheating in selection of goods by attractive and deceptive advertisement. कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लो, बैंकिंग पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, टेलीफोन रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी में कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों को हम परचेस करते हैं तो वो हमें गलत चीज़ों की ओर डाइवर्ट करके हमें वो पॉलिसी और प्लान या चीज़ें सेल कर देते हैं, और उसके बाद एट दी एंड हमें बहुत लॉस फेस करना पड़ता है. By adopting the malpractices of selling, by selling of fake goods in such a manner that they cause the physical as well as the mental harassment, कि उन्होंने आपको एकदम भंगार आउटडेटेड गुड्स बेच दिया, बताया कुछ और निकला कुछ और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको फिजिकल लॉस भी हो सकता है अगर कोई टैबलेट, मेडिसिन या क्रीम इस्तेमाल की है तो, और उसकी वजह से आपको एक फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा. By creating the artificial scarcity and not providing the complete information, consumer is cheated. फिर जब मार्केट में गुड्स अवेलेबल है फिर भी ज़्यादा प्राइजेस आपसे लेने के लिए वो ऐसा इंफॉर्मेशन देते हैं कि गुड्स आर नॉट अवेलेबल, एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग दे विल नॉट गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और बाद में जब कोई लॉस या डैमेज क्रिएट होगा तब वो आपको उससे रिलेटेड रूल्स समझाएंगे. ठीक है. All these creates lots of problem
for the consumer after buying the goods and services. So these are the different tactics or the way through which a consumer is exploited in the market. तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है कि फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन that can be asked in a twisted way. What are the different tactics of consumer exploitation? What are the different ways through which the consumer are exploited in the market? है ना? So these all are the same question but asked in a different way. So you must be aware. Now reason for consumer exploitation, as we saw students, that the seller and the trader will exploit you in a different way. But when he will get such chance, what are the reason that why we are getting exploited? क्यों एक ग्राहक होने के बावजूद एक गुड्स और सर्विसेज का प्रॉपर प्राइसेस पे करने के बावजूद हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होता क्यों है? Somewhere, somehow and somewhat we too are responsible for that. हम खुद भी इस बात के लिए बहुत जिम्मेदार है. So here we will see the different reasons or different causes or of factors responsible for consumer exploitation. So let's see. Consumer is exploited because of the given reason. First, consumer is himself and herself responsible. Yes, मैंने आपको बोला कि अगर हमारे साथ कोई चीटिंग करता है, हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार है. That we were not matured, we were not aware, we were not informed, and we believed on someone else's opinion and the guidance blindly, and that resulted in a exploitation. तो हम पहले खुद जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए. Trader, producer, organizers take undue advantage of consumer by exploiting them in different way because of ignorance, lack of awareness, illiteracy, lack of tendency to become organized and oppose, lack of preparation and the tendency to fight legally against exploitations. क्यों वो आपसे चीट कर लेते हैं आसानी से? क्योंकि आप इग्नोर्ड हो, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, कहीं ना कहीं आप इलिटरेट हो. लेक ऑफ टेंडेंसी टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड अपोज कि एज अ कंज्यूमर मार्केट में जो भी गुड्स और सर्विसेज हम परचेस करते हैं उसके बाद अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम सब कंज्यूमर एक साथ मिलकर कंपनी के अगेंस्ट या उस सेलर या ट्रेडर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते, उनका अपोज नहीं करते, लीगली उन पर केस कर कर कोर्ट तक उन्हें नहीं ले जाते. दिस ऑल गिव्स अ मोर पावर टू द सेलर एंड ट्रेडर टू एक्सप्लॉइट अस, और इस तरह से उनकी और हिम्मत बढ़ती है और वो हमें ज़्यादा एक्सप्लॉइट और चीट करते हैं. सो दैट इज फर्स्ट रीजन that we ourselves is responsible for such exploitation. Second, limited information. In capitalist economy, the producer and the seller are free to produce or sell any commodity or service in any quantity. That today the Indian economy is running in a mixed way. कि जहाँ पर मार्केट में कैपिटलिस्ट अप्रोच वाले इंडस्ट्रीज और बिजनेस भी है जिनका मेन इंटेंशन हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है, वो हमेशा लग्जरियस और ड्यूरेबल गुड्स ही बनाते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो. और इस वजह से कंज्यूमर के पास कौन से गुड्स मार्केट में एक्चुअली बेचे जा रहे हैं, किस प्राइजेस पे बेचे जा रहे हैं, अदर रिलेटेड पॉलिसी उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती. देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग देयर प्राइसिंग एंड क्वालिटी रेगुलेशन. वेर एवर दे आर द रूल्स आर नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली. कि गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके प्राइजेस को फिक्स करने से रिलेटेड, क्वालिटी अश्योरेंस से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशंस बहुत नहीं है, और अगर है भी तो गवर्नमेंट उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा, और बिकॉज ऑफ द करप्शन इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड द प्रोड्यूसर डोंट फॉलो दोज रूल्स एंड फाइनली द एक्सप्लॉयटेशन हैव टू बी फेस्ड बाय द कंज्यूमर. और आखिर में उसका जो भी परेशानी है वो झेलने की नौबत हम पर आ जाती है.
In such situation, in the absence of true knowledge or information about the usefulness of the product, quality and maintenance, condition of use, after sale service, warranty or guarantee, the consumer is not given complete information about the commodity. कि जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो प्राइसिंग से रिलेटेड, सेल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इन सच केसेस गुड्स का एक्चुअल नॉलेज, उसका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशन ऑफ यूज़, सेल करने के बाद क्या सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी, वारंटी गारंटी, ये सभी से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर बैकअप सेलर और ट्रेडर कंज्यूमर को नहीं देता. And thus, due to the limited information and lack of understanding, the consumer tends to make a mistake. और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो जाती है and we face exploitation. Third, limited supply. When supply of product or services is not in accordance with the demand, artificial scarcity is created. कि जब कोई गुड्स और सर्विस मार्केट में जितनी डिमांड हो रही है उतने सप्लाई नहीं हो पा रहे तो एक शॉर्टेज और स्कैरसिटी क्रिएट होगी. Thus, the scarcity is created due to the hoarding by trader, producer, batters और natural calamity. और हर बार ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि मार्केट में जो भी स्कैरसिटी या शॉर्टेज है गुड्स का वो नेचुरल रीजंस के लिए ही हो. Many times the traders, hoarders, profiters try to store the goods in their godowns to create artificial shortage. Why? कि जानबूझकर वो मार्केट से गुड्स की सप्लाई को कम कर देते हैं ताकि कंज्यूमर के पास प्रॉपर गुड्स जब नहीं पहुंचेंगे तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूमर हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाएगा. एंड व्हेन द कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे द हाई प्राइसेस, तब ये ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने जो गुड्स वगैरह स्टोर करके रखे हैं उसे बेचना शुरू करेंगे. तो इस तरह से शॉर्टेज क्रिएट करके चीज़ों के दाम बढ़ाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी बहुत बार अननेसेसरी शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है एंड दैट इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी. इन सच सिचुएशन द ट्रेडर टेक अनड्यू एडवांटेज बाय ओवर प्राइसिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में वो हमसे ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर गुड्स एंड सर्विसेज हमें बेचेंगे. सो इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. 4. Limited competition. When a single producer or a group of producers have their monopoly in the production and sale of a commodity or service, then due to the lack of other alternative, the producer exploits the consumer in a different way in such limited or monopolized market. Ki when we buy goods and services in the market, students, there are so many goods in the market whose मोर सेलर एंड सप्लायर आर नॉट देयर. बहुत से ऐसे गुड्स और सर्विसेज है जिनको बेचने वाली कंपनियां बहुत लिमिटेड है. इस वजह से वो जो लिमिटेड कंपनियां हैं जो हमें गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रही है उनका मार्केट में मोनोपोली और दबदबा बढ़ता है. दे नो दैट वी आर द वेरी फ्यू पीपल हु आर प्रोवाइडिंग दिस गुड्स एंड दैट्स वाई दे कीप ऑन चार्जिंग हाई प्राइजेस फ्रॉम अस एंड दैट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन. इस तरह से वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि हमें दूसरा और कोई सेलर नहीं है जो ये पर्टिकुलर गुड्स दे पाए और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस हमसे लेते रहते हैं एंड दैट क्रिएट्स द एक्सप्लॉयटेशन इश्यू फॉर द कंज्यूमर. दूसरा, उनके जैसे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने वाले दूसरे ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में नहीं होते और इसी वजह से कंपटीशन कम होती है और जिन कंपनियों का मार्केट में इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का दबदबा हो वो कंज्यूमर से कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉयटेशन करते ही रहते हैं बाय चार्जिंग हाई प्राइजेस एंड द कंज्यूमर इज डम्प्ड विद द डिफेक्टिव सर्विस एंड द कमोडिटी ऑफ अ लो क्वालिटी एंड दैट लीड्स टू इशू कि जहाँ पे कंज्यूमर के पास ज़्यादा मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है
इसलिए ये जो भी मोनोपोलिस्ट या एक्सप्लोइटेटिव प्रोड्यूसर्स है उनसे उनको गुड्स खरीदने ही पड़ते हैं एंड दे कीप ऑन फेसिंग so many issues related with the variety of exploitation. So students, this was all about your session 4. Keep on revising and keep on learning. Goodbye. Take care.